Good afternoon, dear students. Today I have come with the second chapter 2 of macroeconomics. Before this, I was explaining the different chapters of Indian economic development. Today I am going to start macroeconomics with its second chapter, and the name of this chapter is money and banking. And the weightage of this chapter for board examination is of 6 marks. मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में इससे 6 marks के questions आएंगे. So first of all, we'll see that what we have to study in this chapter. So in this chapter, firstly we have to study the first topic which we have to study is the barter system of exchange. Firstly, I will make you understand this thing. Then difficulties of barter system of exchange. Then meaning of money and its functions. Then various forms of money, and then money supply, and then measures of money supply. Then commercial banks and their functions, credit creation by commercial banks, central banks and its functions, control of credit by central bank with the help of various instruments of money supply. These are the topics which we have to study in this chapter. Is this clear? But in this video means over this chapter I have made 3 videos. In this first video I will explain this and this, these topics which are related to money. There are 2 parts of this chapter, money and banking. So in this video I am going to cover the entire various concepts related to money, and these are barter system of exchange, difficulties of barter system, meaning of money and its functions, forms of money, money supply and measures of money supply, and this and the remaining topics which are related to banking. I will cover these topics in the second video and the third video. Means in the next 2 videos these 4 topics will be covered. These 1 2 3 4 5 6, these 6 topics I'm going to cover in this first video. Is this clear? So firstly I'm going to start with the first topic, barter system of exchange. Firstly we'll try to understand what is barter system of exchange. So before I start making you understand the barter system of exchange, I would like to make you understand what is the meaning of exchange. इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं barter system of exchange क्या होता है, पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि exchange का मतलब क्या होता है. यदि exchange का मतलब आप समझ गए तो barter system of exchange को easily आप समझ जाएंगे. तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि exchange का मतलब क्या होता है. एक्सचेंज की हिंदी होती है लेन देन. व्हाट इज द हिंदी ऑफ एक्सचेंज? लेन देन. लेन देन, लेन देन को बोलते हैं एक्सचेंज. ओके. और इकोनॉमिक्स में लेन का मतलब क्या होता है? लेन मतलब कुछ लेना. लेना मतलब कुछ आपको मिलता है. आपको मिलता कब है? जब आप परचेज करते हैं. इकोनॉमिक्स में जो फ्री में मिलता है उसको एक्सचेंज में इंक्लूड नहीं करते हैं. एक्सचेंज मतलब लेन मतलब मिलना. किस तरह से मिलना? परचेजिंग. मतलब लेन का मतलब होता है परचेजिंग. लेन मीन्स परचेज. और देन का मतलब देना किसी को. देना कैसे? फ्री ऑफ कॉस्ट देना नहीं. देना मतलब कोई सामान यदि आप किसी को बेचते हैं तो आप दे रहे हैं. तो इकोनॉमिक्स में देन का मतलब क्या होता है? सेलिंग. ओके. तो इसका मतलब एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया? लेन देन. लेन देन का मतलब सेलिंग एंड परचेजिंग. परचेजिंग एंड सेलिंग. परचेजिंग एंड सेलिंग इन दोनों को एक साथ बोलते हैं एक्सचेंज. एक्सचेंज मीन्स सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सेलिंग का मतलब किसी को दे रहे हैं, देन. और परचेजिंग का मतलब किसी से कुछ ले रहे हैं, मतलब लेन. लेन और देन को एक्सचेंज बोलते हैं. इतना आपको क्लियर हो गया? ओके. अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ. सपोज there is a person who is farmer and he is having wheat. एक फार्मर है और उसके पास wheat है. क्या है उसके पास? wheat, गेहूँ है. ओके. और वो wheat से क्या प्राप्त करना चाहता है? he wants to exchange. वो चाहता है wheat को यूज़ करके प्राप्त करना क्या? लैपटॉप.
उसको रिक्वायरमेंट है लैपटॉप की। एक फार्मर है, उसके पास बहुत सारा वीट है और उसको रिक्वायरमेंट किसकी है, लैपटॉप की। तो इस वीट से लैपटॉप क्या डायरेक्टली वो पा सकता है, लैपटॉप सेलर के पास जाके और क्या वीट दे के लैपटॉप ले पाएगा वो, नहीं। जो लैपटॉप सेलर है वो वीट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए जिस व्यक्ति के पास वीट है वो क्या करेगा, वो मार्केट में जाएगा, वीट को बेचेगा। बेचेगा तो उसे क्या मिल जाएगी, मनी। ओके। और इस मनी को देगा किसको, जो लैपटॉप बेच रहा है उसको मनी दे देगा और उसको क्या मिल जाएगा, इस तरह से लैपटॉप। तो इस तरह से उसने क्या किया, वीट के बदले उसको क्या मिल गया, लैपटॉप। इसको क्या बोला, एक्सचेंज। उसने एक्सचेंज कर लिया किसका, वीट का, किससे, लैपटॉप से। वीट का एक्सचेंज उसने लैपटॉप से किया, लेकिन किसके माध्यम से किया, मीडियम इसमें क्या बना, मनी। ओके। तो यहाँ पे एक्सचेंज का मीडियम क्या बना, मनी। तो आज के डेट में जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज का मतलब लेन देन, मतलब खरीदने बेचने। खरीदने बेचने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, मनी का इस्तेमाल करते हैं। मनी इज़ यूज्ड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इज दिस क्लियर। तो अभी आज के डेट में एक्सचेंज में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है किसी भी कमोडिटी का। जैसे वीट का एक्सचेंज आप लैपटॉप से कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप लैपटॉप सेलर के पास जाएंगे, वीट देंगे और लैपटॉप वो आपको दे देगा और वीट एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। यू विल गो टू मार्केट, यू विल सेल आउट योर वीट, यू विल गेट मनी। तो पहले वीट का एक्सचेंज किससे होगा, मनी का, और फिर मनी का एक्सचेंज किससे होगा, लैपटॉप का। और इस तरह से इनडायरेक्टली एक्सचेंज हो रहा है वीट का लैपटॉप से थ्रू मनी। तो मनी इज बिकमिंग द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब एक्सचेंज का मतलब खरीदना या बेचना। यहाँ बेचा क्या जा रहा है, वीट, खरीदा क्या जा रहा है, लैपटॉप। वो लैपटॉप खरीद रहा है, वीट बेच रहा है। और इस सेलिंग और परचेजिंग का मीडियम क्या बना, मनी। तो मनी इज नोन एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इज दिस क्लियर। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ एंशिएंट टाइम में। एंशिएंट टाइम में जब बहुत पुराने समय में, आज से कई हजार साल पहले, जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, दैट टाइम पीरियड मीन्स एंशिएंट पीरियड व्हेन मनी वाज नॉट डिस्कवर्ड, when in this world, in the economies of this world, money was not existing। जब मनी एग्जिस्ट नहीं करता था तब एक्सचेंज कैसे होता था, लेन देन कैसे होता था, डायरेक्टली होता था। गुड्स का एक्सचेंज डायरेक्टली किससे होता था, अदर गुड्स से। एक उदाहरण से इसको समझिए। सपोज एक इंडिविजुअल है, उसके पास वीट है और उसको क्या चाहिए, राइस। ओके। तो वो क्या करेगा, दिस इंडिविजुअल, ए इंडिविजुअल के पास सपोज क्या है, वीट, और बी इंडिविजुअल के पास क्या है, राइस। तो ए इंडिविजुअल बी के पास जाएगा और उसको क्या दे देगा, वीट, और उसे क्या ले लेगा, राइस। तो यहाँ पे वीट का एक्सचेंज डायरेक्टली किससे हो रहा है, राइस से। मतलब गुड्स का एक्सचेंज डायरेक्टली किससे हो रहा है, गुड्स से। इस तरह के एक्सचेंज सिस्टम को बोलते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। दैट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विद अदर गुड्स विद द हेल्प ऑफ मनी। यदि गुड्स का एक्सचेंज अदर गुड्स से किसकी हेल्प से होता है, मनी के हेल्प से। जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया था जिसमें वीट और लैपटॉप का एक्सचेंज हो रहा था, तो इसको बोलते हैं मनी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इसको क्या बोलते हैं, मनी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ऐसा एक्सचेंज का सिस्टम जिसमें मनी इन्वॉल्व है। लेकिन ऐसा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, मतलब गुड्स का डायरेक्टली एक्सचेंज गुड्स से हो रहा है, तो इस तरह के सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को बोलते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक पेन है, मेरे पास 2 पेन्स है और आपके पास एक कॉपी है। आपको पेन की रिक्वायरमेंट है, मुझे कॉपी की रिक्वायरमेंट है। मैंने आपको पेन दे दिया, आपने मुझे मेरी कॉपी, अपनी कॉपी मुझे वापस कर दी। तो इस तरह से पेन का एक्सचेंज कॉपी से हो गया। एक गुड का एक्सचेंज दूसरे कमोडिटी से डायरेक्टली हो रहा है। इस तरह के सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को बोलते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू दैट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स एंड सर्विसेज वेयर एक्सचेंज्ड डायरेक्टली for other goods and services। यहाँ पे for होगा, for that system of exchange in which goods were directly exchanged for other goods and services, that system of exchange was known as barter system of exchange। अब आपसे कोई पूछता है कि आज के ज़माने में करेंट टाइम पीरियड पे, प्रेजेंट टाइम पीरियड पे जो एक्सचेंज का सिस्टम है वो मनी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है या बार्टर, तो आप क्या बोलेंगे, मनी। तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कब एग्जिस्ट करता था, ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम पीरियड व्हेन मनी वाज नॉट डिस्कवर्ड। दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एग्जिस्टेड प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। जब मनी का इंट्रोडक्शन हुआ, मनी का इन्वेंशन हुआ, उससे पहले जो ये हमारी सोसाइटी थी उसमें बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाता था।
बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्लियर हो गया. इफ़ गुड्स आर एक्सचेंज्ड विद अदर गुड्स, मतलब गुड्स की अदला बदली, एक गुड्स के बदले दूसरी गुड आपको मिल रही है डायरेक्टली, तो इसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम. आज के डेट में क्या होता है, कोई गुड हमारे पास है, हमको दूसरी गुड चाहिए, तो जो कमोडिटी हमारे पास है उसे मार्केट में बेचेंगे, उससे पैसा मिलेगा, मनी मिलेगी, उस मनी को से दूसरी कमोडिटी हम खरीद लेंगे. तो जो गुड हमको हमारे पास है उसे हम दूसरी गुड पा लेते हैं. कैसे? विद द हेल्प ऑफ मनी. इसको मनी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं. अब बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जब पास्ट में एग्जिस्ट करता था तो वही क्यों नहीं चलता हुआ चला आया, क्यों बाद में मनी का इन्वेंशन हुआ? कोई भी नई चीज़ तभी इन्वेंट की जाती है जब पुरानी चीज़ में लोगों को प्रॉब्लम होती है. न्यू सिस्टम इज़ इन्वेंटेड ओनली इफ़ द एग्जिस्टिंग सिस्टम इज़ हैविंग सम प्रॉब्लम. यदि कोई सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तो लोग ट्राई करेंगे नए सिस्टम को इन्वेंट करने की. या कोई चीज़ है, कोई कमोडिटी है, कोई हम सर्विस यूज़ कर रहे हैं या कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम हमको लग रही है, तो हम नई चीज़ इन्वेंट करना चाहते हैं जो उससे बेटर है. तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज पहले चलता था ये सिस्टम. बाद में मनी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ने इसको रिप्लेस कर दिया. मतलब एक्सचेंज के लिए गुड्स का डायरेक्टली गुड्स से एक्सचेंज होता था, लोग कर रहे थे आराम से. लेकिन बाद में अब गुड्स को एक्सचेंज गुड्स से डायरेक्टली न करके गुड्स को गुड्स से एक्सचेंज करने के लिए मनी को मीडियम के रूप में इस्तेमाल करा जाने लगा. मतलब मनी का इन्वेंशन किया गया. तो डेफिनेटली बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में कुछ प्रॉब्लम रही होगी. डेफिनेटली सम देयर वुड हैव बीन सब प्रॉब्लम इन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. तो वही हमको पढ़ना है, डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था या बार्टर सिस्टम था, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. वही प्रॉब्लम्स क्या थी उसको मैं नेक्स्ट आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ. पहली डिफ़िकल्टी थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है उसमें एक्सचेंज तभी हो पाता है जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो, और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बहुत रेयर होती हैं. जल्दी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मिलती नहीं है, इसीलिए एक्सचेंज बहुत लिमिटेड होता है उसमें. कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ. सपोज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है, ओके, और उस बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में एक इंडिविजुअल है. दैट इंडिविजुअल इज हैविंग सपोज वीट. अभी जो एग्जांपल मैंने लिया था, ओके, ए इंडिविजुअल है, उसके पास वीट है. एक इंडिविजुअल है, उसके पास लैपटॉप है. ये इंडिविजुअल है बी, ओके. अब individual A wants to get laptop, okay, money is not there. Then what will he have to do? He will have to find out another person who is having the demand of, who is having laptop and is also having the demand of wheat. A व्यक्ति को लैपटॉप चाहिए, ओके, तो उसको एक दूसरे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसके पास लैपटॉप हो और उसके पास वीट की डिमांड हो. जैसे ए इंडिविजुअल है तो उसको फाइंड आउट करना होगा, वो जाएगा बी इंडिविजुअल के पास और बी इंडिविजुअल से पूछेगा कि आपके पास लैपटॉप है, तो ये बोलेगा यस आई एम हैविंग लैपटॉप. तो ए खुश हो जाएगा कि हाँ चलो लैपटॉप है इसके पास. लेकिन बी से ये कहेगा लैपटॉप मुझे तुम्हारा चाहिए, लेकिन लैपटॉप के बदले मैं तुमको क्या दूंगा, वीट दूंगा. तो यदि बी को भी वीट की रिक्वायरमेंट है, यदि बी वीट की डिमांड रखता है तब तो एक्सचेंज होगा. लेकिन यदि बी वीट की डिमांड नहीं रखता, डिमांड वीट की चाहत नहीं रखता, ही बी डज नॉट वांट टू गेट वीट, इन दैट केस ही विल नॉट एक्सेप्ट वीट फॉर लैपटॉप और एक्सचेंज नहीं होगा. तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब क्या हो गया, ए इज हैविंग द डिमांड ऑफ लैपटॉप and B is having the demand of wheat. Means there are two individuals and both individuals are having the demand of the goods of each other. दो इंडिविजुअल्स हैं और दोनों इंडिविजुअल्स के पास जो गुड्स हैं, एक दूसरे की गुड्स की डिमांड यदि है तो इसे बोलेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. मतलब ए इज़ हैविंग द डिमांड ऑफ लैपटॉप एंड बी इज़ हैविंग द डिमांड ऑफ वीट. तो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा. बट सपोज A is having the demand of laptop, but B is not having the demand of wheat. In that case, exchange will not be possible. मतलब यदि आपके पास कोई चीज़ है और उससे आप दूसरी चीज़ पाना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास wheat है और आपको लैपटॉप चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, you will have to find another person who is having laptop as well as he is having the demand of wheat. तो यहाँ हो गया double coincidence of want. The wheat which you are having, the person who is having laptop is having the demand of wheat
and you are having the demand of laptop, means both of you are having the demand of goods of each other. इसको बोलेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा ये बहुत ही रेयर है. इसको एक और एग्जांपल से समझें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. सपोज एक इंडिविजुअल है, उसके पास राइस है, और एक दूसरा इंडिविजुअल है, उसके पास पेन है. The person who is having rice, that person wants to get pen, but the person who is having pen, that person does not want to get rice. तो यहाँ पे double coincidence of want नहीं है. Only the person who is having rice, that is having the demand of pen, but the person who is having pen, this person is not having the demand of rice. So यहाँ पे double coincidence of want नहीं हो रहा है. एक्सचेंज कब होगा? जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होगा. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब द पर्सन हु इज हैविंग राइस इज हैविंग द डिमांड ऑफ पेन, एंड द पर्सन हु इज हैविंग पेन इज हैविंग द डिमांड ऑफ राइस. तो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा. तो इसे बोलेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. ये कोइंसिडेंस है, एक संयोग है. मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब टू इंडिविजुअल्स आर हैविंग द डिमांड ऑफ ईच अदर्स गुड. एक चीज़ मेरे पास है, दूसरी चीज़ आपके पास है. जो चीज़ आपके पास है वो मुझे चाहिए, जो चीज़ मेरे पास है वो आपको चाहिए. तो एक्सचेंज हो जाएगा यहाँ पे. इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बहुत रेयर था, इसलिए एक्सचेंज बहुत ही रेयरली हो पाता था. किसमें? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में. दूसरा, देयर वाज अनदर प्रॉब्लम, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजर. गुड्स एंड सर्विसेज का की जो सेलिंग और परचेजिंग होती है, मतलब एक्सचेंज के लिए, एक्सचेंज का मतलब आपको बताया था मैंने कि सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स. और बिफोर सेलिंग एंड परचेजिंग यू विल हैव टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स विच आर बीइंग एक्सचेंज्ड. यदि एक गुड का दूसरे गुड से आपको एक्सचेंज करना है तो दोनों की वैल्यू का मेजरमेंट करना पड़ेगा. और वैल्यू का मेजरमेंट किस टर्म्स में करते हैं? मनी के टर्म्स में करते हैं. तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में मनी था ही नहीं, इसीलिए कोई कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं थी. मतलब जो गुड्स का एक्सचेंज होता था उनकी वैल्यू के मेजरमेंट के लिए कोई यूनिट नहीं थी. आज मेजरमेंट की यूनिट क्या है? मनी. जैसे इंडिया में किसी गुड की वैल्यू को मेजरमेंट करना है तो आप रुपीज़ में करेंगे, अमेरिका में करना है तो डॉलर में करेंगे, ब्रिटेन में करना है तो पाउंड में करेंगे. डिफरेंट कंट्रीज़ की जो मनी है वो डिफरेंट करेंसीज़ के फॉर्म में उसमें उनका मेजरमेंट होता है और आसानी से एक्सचेंज हो जाता है. तो एक प्रॉब्लम ये था, कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट कोई नहीं थी. प्रॉब्लम इन स्टोर ऑफ वैल्यू, एक और प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में कि लोगों को अपनी सेविंग्स को स्टोर करने में प्रॉब्लम होती थी. इसको एक उदाहरण समझिए. देयर वाज प्रॉब्लम इन स्टोर ऑफ वैल्यू. जो लोग सेविंग्स करते थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, जो भी गुड्स को प्रोड्यूस करते थे, उन गुड्स में से जो भी वो सेविंग करते थे, जो सेव करते थे, जो बचाते थे, उसकी वैल्यू को स्टोर करना डिफ़िकल्ट था. कैसे? सपोज देयर इज़ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है, मनी एग्जिस्ट नहीं करती है, और एक फार्मर है और फार्मर ने वीट ग्रो करा है. कितना वीट ग्रो करा है? 500 किलोग्राम. ओके. और इसने एस्टिमेट करा, ही इज़ एस्टिमेटिंग दैट फॉर फैमिली कंजम्पशन 100 kg वीट विल बी रिक्वायर्ड. फैमिली के कंजम्पशन के लिए कितना वीट रिक्वायर्ड होगा? 100 kg. तो जो 400 किलोग्राम वीट है, 400 kg वीट है, ये इसकी क्या होगी? सेविंग है. ओके. अब ये जो सेविंग है इसको स्टोर करना होगा ताकि फ्यूचर में कोई भी पेमेंट करना हो, कोई भी गुड खरीदना हो या बच्चों की फ़ीस का पेमेंट करना हो तो उसका पेमेंट कर पाए. अब मनी नहीं है तो वो किस फॉर्म में स्टोर करेगा? वीट को वीट के फॉर्म में स्टोर करेगा. 400 किलोग्राम वीट जो है इसको स्टोर करना पड़ेगा. स्टोरेज के लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए, ठीक है. और स्टोर करेगा तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वीट की क्वालिटी ख़राब होती जाएगी, तो इसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. तो जो स्टोरेज, मतलब बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में गुड्स को गुड्स के फॉर्म में स्टोर करना पड़ता था. तो गुड्स को गुड्स के फॉर्म में स्टोर करने के लिए उनको क्या चाहिए होता था? स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब गोडाउन या रखने के लिए जगह रखनी रिक्वायर्ड थी, जिसकी कॉस्ट अलग से आती थी. दूसरा, जब गुड्स को गुड्स के फॉर्म में स्टोर करते थे तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब कोई भी कमोडिटी रखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती जाती है? कम होती जाती है. उसमें खराबी आती जाती है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है. तो इस तरह से वैल्यू भी कम हो जाती थी, रखने के लिए कॉस्ट भी बियर करनी पड़ती थी, तो ये स्टोरेज में प्रॉब्लम होती थी. आज के डेट में कोई प्रॉब्लम स्टोरेज में नहीं है, क्योंकि यही फार्मर यदि मॉनेटरी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, मनी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो 400 किलोग्राम वीट को ये गोडाउन में स्टोर नहीं करेगा. ये क्या करेगा? 400 किलोग्राम को क्या करेगा? मार्केट में बेच देगा. और इसको क्या मिल जाएगा? सपोज 10,000 रुपीज़ इसको मिल जाता है.
₹10,000 इसको मिला, तो इस ₹10,000 को बैंक में डिपॉजिट कर देगा। तो ये जो ₹10,000 की वैल्यू जो आज है वो कल ही रहेगी। मनी वैल्यू जैसे ₹100 की नोट है, आज ₹100 की है, तो कल ₹50 की थोड़े ना हो जाएगा, वो ₹100 की बनी रहेगी। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है मनी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में, जो हम हमारी सेविंग्स है उसको स्टोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि कोई स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है। 400 किलोग्राम वीट है, उसको बेचा मार्केट में, जो भी मनी मिला उसको बैंक में डिपॉजिट करा, तो इस सेविंग को स्टोर करने के लिए कोई जगह की, कोई भी स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये जो स्टोरेज है, जो वैल्यू हमने स्टोर करा इन द फॉर्म ऑफ मनी, उसकी उसमें स्टेबिलिटी भी है, उसकी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम भी नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम थी किसमें, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में, स्टोरेज ऑफ वैल्यू, जो सेविंग्स की वैल्यू थी उसको स्टोर करने में प्रॉब्लम था। तीसरा, सॉरी, नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इन ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। अगला अगली जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम इन ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। जो वैल्यू का ट्रांसफ़र करना होता था, जो भी प्रॉपर्टीज़ होती थी उसकी वैल्यू के ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम होती थी। इसका मतलब क्या हो गया, सपोज़ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है, अब मान लेते हैं कि आज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है, और इलाहाबाद में आपका एक घर है, एक आपके पास एक बिल्डिंग है इलाहाबाद में, ओके, और आपके पिताजी का ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ, दिल्ली। आपके पिताजी का ट्रांसफ़र दिल्ली हो जाता है, तो वो क्या करेंगे, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है, सपोज़ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज नहीं, नॉर्मल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है जो अभी चल रहा है। नॉर्मल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है, तो आप So next problem in barter system of exchange was problem in transfer of value. Let us understand this thing, what this thing is, what this problem was. Actually, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, इसको मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ आपका एक घर है, एक फ्लैट है प्रयागराज में, यू आर हैविंग अ फ्लैट, ओके, एक घर है आपका, 3 BHK फ्लैट है सपोज़ इलाहाबाद में, और आपके फादर का ट्रांसफ़र दिल्ली में हो जाता है। तो आज क्या करेंगे वो, ये है प्रयागराज में फ्लैट है, अब आपके फादर का ट्रांसफ़र कहाँ हो गया, दिल्ली। तो क्या करेंगे, ये जो प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, योर फादर विल सेल आउट दिस फ्लैट, और उनको क्या मिल जाएगा, मनी ही विल गेट, और इस मनी को लेकर आएंगे दिल्ली में, और दिल्ली में एक दूसरा फ्लैट खरीद लेंगे। तो ही इज़ ट्रांसफरिंग द वैल्यू ऑफ हिज प्रॉपर्टी इन फॉर्म ऑफ मनी। मनी है तो जो भी वैल्यू, किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह पे ईजिली हम कर सकते हैं, किस फॉर्म में, मनी के फॉर्म में। जैसे आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पे है, प्रयागराज में है, फ्लैट के फॉर्म में आपने सेल आउट किया, आपको मिला मनी, और मनी को यूज़ करके आपने सेम टाइप ऑफ 3 BHK फ्लैट कहाँ परचेज़ कर लिया, दिल्ली में। तो जो प्रॉपर्टी आपकी थी प्रयागराज में, उसकी वैल्यू को आपने कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया। बट सपोज़ मनी इज़ नॉट अवेलेबल, यदि मनी अवेलेबल नहीं है, सपोज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में मनी नहीं है, प्रयागराज में आपके फादर के पास एक फ़्लैट है, अब उनका ट्रांसफ़र दिल्ली हो जाता है, तो वो सारे जो मूवेबल आइटम्स हैं जैसे रेफ्रिजरेटर या फर्नीचर या अदर हाउस होल्ड गुड्स, उसको तो ट्रांसफ़र दिल्ली में कर लेंगे, लेकिन ये जो फिक्स्ड एसेट है इसकी वैल्यू को ट्रांसफ़र दिल्ली में कर पाएंगे नहीं, फ्लैट यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। तो यही है प्रॉब्लम इन ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। जब बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज होता है तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह पे करना बहुत डिफ़िकल्ट या कई केसेस में इम्पॉसिबल हो जाता है। सो दिस वाज अनदर प्रॉब्लम इन दिस बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज द प्रॉब्लम इन फ्यूचर पेमेंट्स। व्हाट आर द फ्यूचर पेमेंट्स? फ्यूचर पेमेंट्स मीन्स रीपेमेंट ऑफ लोन। जो भी हम अमाउंट ऑफ मनी बोरो करते हैं, जो बोरोइंग्स हमारी होती हैं, उनको फ्यूचर में क्या करना पड़ता है, रीपे करना पड़ता है। वी हैव टू रीपे। तो फ्यूचर पेमेंट्स मतलब रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट ऑफ लोन आज के डेट में हम किस में करते हैं, मनी के फॉर्म में करते हैं, मनी के फॉर्म में। सपोज़ मैंने 100 रुपीज़ बोरो करा,
₹100, ओके। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो आफ्टर 1 ईयर मैं जब रिटर्न करूँगा तो कितना रिटर्न कर दूंगा? ₹110। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था, तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में जो बोरोइंग होती थी गुड्स के फॉर्म में होती थी। तो सपोज़ किसी ने वीट बोरो करा, सपोज ए इंडिविजुअल है, ए इंडिविजुअल ने बी इंडिविजुअल से बोरो करा क्या? वीट। कितना वीट? 10 kg वीट। और दोनों में एग्रीमेंट हुआ कि आफ्टर 1 मंथ जो ई है वो बी को रिटर्न करेगा वीट कितना किलोग्राम? 12 किलोग्राम। क्यों 12 किलोग्राम? 10 किलोग्राम तो इसने लिया है, ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटिटी, और 2 किलोग्राम हो जाएगा इंटरेस्ट। आज भी जो हम कोई भी अमाउंट ऑफ मनी बोरो करते हैं तो विद इंटरेस्ट रिटर्न करते हैं, तो दोनों में एग्रीमेंट ये हो जाता है कि ए ने बी से बोरो करा 10 किलोग्राम, और आफ्टर 1 मंथ ही विल हैव टू रिटर्न 12 किलोग्राम वीट, रीपेमेंट ऑफ लोन। तो आप कहेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये हो सकती है या होती थी पास्ट में कि ए बी ने अच्छी क्वालिटी का वीट ए को दिया, और ए जो रीपेमेंट कर रहा है लोन का इन द फॉर्म ऑफ सेम क्वांटिटी, हो सकता है क्वांटिटी ख़राब हो। तो इसमें दोनों में जो रीपेमेंट ऑफ लोन में प्रॉब्लम आ जाएगी, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। बी में से दैट द क्वालिटी ऑफ वीट विच यू आर रिटर्निंग टू मी दैट इज़ इन्फीरियर देन दैट विच आई गिव टू यू। मतलब बी कह सकता है कि मैंने आपको अच्छी क्वालिटी का वीट दिया और आपने ख़राब क्वालिटी का वीट मुझे रिटर्न कर रहे हैं। मनी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 100 रुपया मैंने आपसे लिया, आपको 110 रुपया वापस कर दूंगा। इसमें क्वालिटी का कोई भी कहीं प्रॉब्लम नहीं आता है। क्योंकि आज के रेट में तो आप देख रहे हैं मनी के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। तो आपने मुझे 100 रुपीज़ दिया, मुझे 110 रुपीज़ वापस करना है, मैं अब वापस कर दूंगा। चाहे एकदम करेंसी नोट हो या नोट थोड़ी सी पुरानी हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों की परचेजिंग पावर सेम रहेगी। वीट के केस में तो ऐसा, कमोडिटी के केस में ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज चल रहा है और मैंने आपसे बोरो करा, सपोज़ 2 चेयर्स मैंने बोरो करी आपसे, मुझे चेयर की रिक्वायरमेंट थी, 2 चेयर बोरो करे, और हम लोगों में एग्रीमेंट हुआ कि आफ्टर 1 ईयर आई विल रिटर्न 3 चेयर्स टू यू। 1 चेयर इंटरेस्ट होगा, 2 प्रिंसिपल चेयर्स हो जाएंगी। और मैंने जब रिटर्न करा तो मेरे चेयर की क्वालिटी, आपने जो चेयर मुझे रिटर्न करी थी उसकी दिया था, लेंड करा था, लेंडिंग के फॉर्म में, लोन के फॉर्म में दिया था, मेरे चेयर की क्वालिटी उससे ख़राब है, तो आप लेने से इनकार कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रॉब्लम हो जाती थी बिकॉज ऑफ difference in the qualities of goods when future payments are to be done. If future payments are to be done in form of goods, because of different in the qualities of uh, goods, there may be some problem in future payments. So ये एक प्रॉब्लम होती थी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में। एंड लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, चूँकि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज दूसरे गुड्स और सर्विसेज से होता है, और देर आर मेनी गुड्स विच कैन नॉट बी डिविजिबल, जो डिविजिबल नहीं हो सकती हैं। इसको एक और इससे एक्सचेंज में प्रॉब्लम होती थी। इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए। सपोज एक इंडिविजुअल है, उसके पास गोट है, ही इज़ हैविंग गोट, ओके। और 2 अदर इंडिविजुअल्स है, एक के पास राइस है और दूसरे के पास वीट है। और एक्सचेंज रेट कैसे फिक्स हो रहा है दोनों में? ये कहा जा रहा है कि 1 गोट जो है, एक गोट किसके बराबर होगी? 1 गोट विल बी इक्वल टू 10 kg राइस, और 1 गोट विल बी इक्वल टू 20 kg वीट। इज दिस क्लियर? और सपोज जो ये इंडिविजुअल ए है जिसके पास गोट है, इंडिविजुअल बी है उसके पास राइस है, और इंडिविजुअल सी है इसके पास क्या है? वीट है। अब सपोज ए हैज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ थिंग्स, राइस एंड वीट। तो यहाँ पे तो इसके पास दोनों ये ले नहीं पाएगा, क्योंकि गोट डिविजिबल नहीं है। यदि गोट डिविजिबल होता तो गोट को क्या करता? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता, आधा गोट दे देता राइस वाले को, तो राइस इसको कितना मिल जाता? हाफ ऑफ 10, मतलब 5 किलोग्राम इसको राइस मिल जाता, और हाफ ऑफ 20 किलोग्राम वीट इसको, क्योंकि एक गोट देता पूरा फुल गोट देता तो 20 किलोग्राम वीट मिलता। हाफ गोट इसको देता तो इसको 10 किलोग्राम मिल जाता वीट, तो इसको दोनों मिल जाता वीट और राइस। लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाएगा बिकॉज गोट इज़ नॉट डिविजिबल, इसीलिए यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। सो इन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज मेनी टाइम्स एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मेनी गुड्स आर नॉट divisible. So these were the problems of barter system of exchange: lack of double coincidence of wants, lack of common unit of measure of value, problem in store of value, problem in transfer of value, problem in future payments, and lack of divisibility। ये सारी problems थी।
अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है क्लास 12 के मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में हमारे सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो आप पूछेंगे सर फिर आपने बताया क्यों? इसलिए बताया क्योंकि मनी को आप तभी समझ पाएंगे जब मनी से पहले जो सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, वो सिस्टम क्या था और इसमें क्या प्रॉब्लम्स थी। इनमें इन सबको आपको रट के याद करके बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, केवल मैंने आपको समझाया और उसी तरह से आप इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज आता नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसलिए हमारे सिलेबस में क्या है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। व्हाट मीनिंग ऑफ मनी, मनी का मतलब क्या होता है। अभी मैंने बताया था मनी का यूज़ क्या होता है। मनी इस पिछले स्लाइड में जब मैंने लैपटॉप और वीट का एग्जांपल लिया था तो मैंने बताया था मनी इज़ यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज के डेट में हमारे जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, जो इकोनॉमीज़ है, इसमें गुड्स का एक्सचेंज दूसरी गुड्स से डायरेक्टली नहीं होता है। जैसे किसी के पास वीट है मान लीजिए और उसको पेन चाहिए, तो वो वीट का पेन से डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं करेगा। वो क्या करेगा, मार्केट में जाएगा, वीट को बेचेगा, सेल आउट करेगा और उसको मिल जाएगा मनी। जैसे इंडिया में है तो उसको मनी किस फॉर्म में मिलेगा, रुपीज़ के फॉर्म में, और इसे ये परचेज़ कर लेगा पेन। तो एक्चुअली ही इज़ एक्सचेंजिंग वीट फॉर पेन। वीट को बदल रहा है किससे, पेन से बदल रहा है, लेकिन इसमें मीडियम क्या बन रहा है, मनी। तो मनी का डेफिनेशन यहीं से बन जाता है, एनीथिंग विच एक्ट्स एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज मनी। कोई भी चीज़ जिसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उसको मनी कहा जाता है। हमारे कंट्री में मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में किसको इस्तेमाल किया जाता है, रुपीज़ को। इसलिए हमारे कंट्री में मनी क्या हो गया, रुपीज़। अमेरिका में डॉलर को, तो डॉलर। ब्रिटेन में किसको इस्तेमाल किया जाता है, पाउंड को, तो ब्रिटेन में हो गया पाउंड। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ मनी। ठीक है। बाद में मनी के डेफिनेशन को थोड़ा और चेंज किया गया और कहा गया एनीथिंग विच इज़ एबल टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मनी इज़ मनी। ऐसी कोई भी चीज़ जो मनी के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में एबल है, जिसके पास एबिलिटी है टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के फंक्शन का मतलब काम, जो काम मनी करती है वो काम, ऐसी कोई भी चीज़ जो सारे काम करते वो मनी मान लिया जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी, मनी इज़ यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसा कि मैंने आपको बताया मीडियम ऑफ एक्सचेंज पिछली स्लाइड में और इसमें भी। मनी इज़ यूज द मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट, दोनों का मतलब यही होता है। किसी भी गुड की वैल्यू के मेजरमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, मनी को। मतलब किसी भी चीज़ की वैल्यू को हम किस में मापते हैं, मनी के फॉर्म में। जैसे चेयर है, कार है, बाइक है, सबकी वैल्यू को एक ये फंक्शन होता है। स्टोर ऑफ वैल्यू, मैंने बताया था पिछले स्लाइड में कि जो हमारी सेविंग्स होती हैं उसको स्टोर हम किसके फॉर्म में करते हैं, मनी के फॉर्म में। जैसा मैंने एग्जांपल लिया था, 500 किलोग्राम वीट एक फार्मर ने ग्रो करा, 100 किलोग्राम उसने रखा सेल्फ कंजम्पशन के लिए, 400 किलोग्राम वीट उसके पास सेविंग है, इसको क्या करेगा, मनी मार्केट में बेचेगा और किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, मनी के फॉर्म में, और फिर मनी को डिपॉजिट कर देगा बैंक में। और इस तरह से मनी को यूज़ किया क्या, स्टोर द वैल्यू के फंक्शन के रूप में इस्तेमाल करा। और क्या मनी का फंक्शन है, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। मैंने बताया था यदि कोई प्रॉपर्टी इलाहाबाद में, जैसे कोई फ्लैट है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, ओके, अब इस फ्लैट को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कहाँ पे, दिल्ली में। तो ऐसा तो नहीं कि फ़्लैट को खोद देंगे और ट्रक पे लाद के दिल्ली लेकर चले जाएंगे। क्या करेंगे, फ़्लैट को सेल आउट करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, मनी, और फिर इस मनी से परचेज़ कर लेंगे दिल्ली में सेम काइंड ऑफ फ्लैट। तो यहाँ पे जो भी है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उनकी वैल्यू को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है मनी को। एंड स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, जो भी हमारे फ्यूचर पेमेंट्स, मतलब फ्यूचर में हमको पेमेंट्स करने हैं, कौन से, रीपेमेंट ऑफ लोन। जो भी लोन का हमको रीपेमेंट करना होता है वो भी किस फॉर्म में हम करते हैं, मनी के फॉर्म में करते हैं। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में एक एक करके सारी बात मैंने आपको बताई थी। दीज आर द फंक्शंस ऑफ मनी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन, और इन सारे फंक्शन को बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी, और इन सबको बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। तो एनीथिंग विच इज़ एबल टू परफॉर्म ऑल दिस फंक्शंस ऑफ मनी दैट इज़ नोन एज मनी। एक ये भी डेफिनेशन हो सकता है, या इन सारे फंक्शन को परफॉर्म करे या ना करे, यदि पहले फंक्शन को भी परफॉर्म कोई भी चीज़ कर देती है, दैट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैट विल बी नोन एज मनी। तो मनी का डेफिनेशन जो होता है वो क्या होता है, एनीथिंग विच इज़ एबल टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ मनी, or anything which can be used as medium of exchange, that is also known as
मनी। तो इन दोनों में से कोई भी डेफिनेशन एग्जाम में आता है तो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है आपके लिए कि ये जो फंक्शंस ऑफ मनी है 2 years बैक इट वॉज डिलीटेड फ्रॉम आवर सिलेबस। पहले हमारे सिलेबस में था। अब फंक्शंस ऑफ मनी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, केवल मीनिंग ऑफ मनी हमारे सिलेबस में है। फिर से आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जब पूछा नहीं जाएगा तो क्यों पढ़ाया गया? क्योंकि फंक्शंस ऑफ मनी यदि आप नहीं समझेंगे तो मनी के बारे में आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो केवल आपको समझाने के लिए कि मनी का क्या क्या काम होता है या मनी का क्या यूज़ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़, इट इज़ यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड यूज़, टू मेज़र द वैल्यू। किसी भी कमोडिटी की वैल्यू के मेजरमेंट हम किस में करते हैं? मनी के फॉर्म में करते हैं। हम सेविंग्स को स्टोर किस में करते हैं? तुरंत हम उसको, जो भी हमारे पास कमोडिटी का प्रोडक्शन करते हैं, जो कमोडिटीज़ हमारे पास बच जाती हैं वो हमारी सेविंग्स होती हैं, उनको कमोडिटी के फॉर्म में नहीं रखते हैं। कमोडिटी के फॉर्म में रखेंगे तो कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। पहला, उसको कोई चोरी कर सकता है, थेफ्ट की प्रॉब्लम है। वो स्टोरेज के लिए आपको जगह बनानी पड़ेगी और उसमें खर्च आएगा, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इससे अच्छा क्या है, उसको सेल आउट कर दीजिए, मनी आपको मिल जाएगी, मनी के फॉर्म में उसकी वैल्यू को स्टोर कर लीजिए। जो फिक्स्ड एसेट्स होती है उसकी वैल्यू को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किस फॉर्म में करते हैं? मनी के फॉर्म में करते हैं। और जो फ्यूचर पेमेंट्स होते हैं उसको भी करने के लिए किसको यूज़ करते हैं? मनी को। ये सारे मनी के फंक्शंस हैं। सो व्हाट इज़ मनी? एनीथिंग विच इज़ एबल टू परफॉर्म द फंक्शंस, ऑल द फंक्शंस ऑफ मनी, दैट इज़ मनी। और एनीथिंग which acts as medium of exchange or which can be used as medium of exchange, that is also known as money. अब next और more important part of this topic, that is various forms of money. मनी के कितने तरह की मनी होती है? मनी के कई सारे फॉर्म्स हैं। किस किस तरह की मनी होती है ये हमको पढ़ना है। ये कौन कौन से फॉर्म्स हैं? फुल बॉडीड मनी, दूसरा फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, जिसको क्रेडिट मनी भी बोलते हैं, बैंक मनी, हाई पावर्ड मनी, लीगल टेंडर मनी, नॉन लीगल टेंडर मनी, नियर मनी। दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी। ये मनी के डिफरेंट रूप, अलग अलग रूप हैं। मनी इस मतलब विद पास्ट से लेके मतलब जब से मनी का इन्वेंशन हुआ तो ये डिफरेंट फॉर्म्स मनी के रहे। मनी इस इन फॉर्म्स में इवोल्यूशन हुआ मनी का। फुल बॉडीड मनी क्या होती है, पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है। फुल बॉडीड मनी इज़ दैट मनी whose value as commodity is equal to its value as money। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। सपोज 10 ग्राम गोल्ड जो है, 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू है सपोज 40,000 रुपीज़। ओके, मार्केट में वैल्यू है 10 ग्राम गोल्ड की 40,000 रुपीज़। और एक गोल्ड कॉइन बनाया जाता है। कितने ग्राम का गोल्ड कॉइन है? इसका वेट कितना है? 10 ग्राम। ओके ओके, और इस गोल्ड कॉइन पे लिखा कितना जाता है? 40,000 रुपीज़। कॉइन पे जितना लिखा रहता है वो उसकी क्या होती है? मनी वैल्यू होती है। जैसे एक कॉइन है और उस पर 1 रुपये लिखा हुआ है, मतलब इससे कितने की परचेजिंग कर सकते हैं? 1 की। 10 रुपीज़ लिखा हुआ है तो इससे कितने की परचेजिंग कर सकते हैं? 10 रुपीज़ की। ये जो गोल्ड कॉइन है इस पर कितना लिखा हुआ है? 40,000, मतलब इसकी परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है इस गोल्ड कॉइन की? 40,000। तो इसकी मनी वैल्यू, इसी को बोलते हैं वैल्यू एज मनी। इस गोल्ड कॉइन को मनी के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो कितने रुपीज़ का गुड्स आप परचेज कर सकते हैं? 40,000 की। और ये गोल्ड कॉइन किस मेटल से बना है? गोल्ड से बना है। ओके, इसके मेटल की वैल्यू भी कितनी है? 40,000 रुपीज़। तो जितने इसकी एज ए कमोडिटी इसको इस्तेमाल करेंगे, गोल्ड कॉइन के रूप में इस्तेमाल मत करिए इसको, कॉइन के रूप में मनी के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे। कॉइन मतलब मनी, इसको हम कमोडिटी के रूप में, मतलब इसको मेल्ट करके बेचेंगे तो भी कितना मिलेगा? 40,000। या इसको कॉइन मनी के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो भी कितना मिलेगा? 40,000 रुपीज़। तो ऐसी कोई भी मनी जिसकी कमोडिटी के रूप में वैल्यू जितनी है उतनी ही मनी के रूप में भी वैल्यू है, उसको बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। इज इज क्लियर? वही लिखा गया है, इट इज़ दैट मनी हुज वैल्यू एज कमोडिटी अ वैल्यू ऑफ मेटल यूज्ड। कोई भी ऐसी मनी जिसको बनाने के लिए जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है उस मटेरियल की जितनी वैल्यू है उस पर उतना ही अमाउंट प्रिंट किया गया है, मतलब उसकी मनी वैल्यू भी उतनी ही है, तो इसको बोलेंगे फुल बॉडीड मनी। इज़ दिस क्लियर? जैसे पास्ट में जो गोल्ड कॉइन्स बनते थे या सिल्वर कॉइन्स बनते थे उनकी वैल्यू एज कमोडिटी और वैल्यू एज मनी दोनों इक्वल होती थी, मतलब उन कॉइन्स पे जितना लिखा रहता था उतना ही लिखा रहता था जितनी उनकी मेटल की वैल्यू होती थी। जिस मेटल से बनते थे, यदि मेटल वो 5,000 का था तो उन पर कितना
अमाउंट लिखा रहता था 5000, यदि 6000 था तो 6000। तो इस तरह के फुल बॉडीड मनी, इस तरह के मनी को बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। इज दिस क्लियर? एक होता है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी या क्रेडिट मनी। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या होता है? जिस मटेरियल से वो बना रहता है, जो मनी जिस मटेरियल से बना रहता है उस मटेरियल की कॉस्ट कम होती है और उस पर ज़्यादा अमाउंट प्रिंट रहता है। मतलब एक कॉइन मान लीजिए बना, आज की डेट में हम कह रहे हैं एक कॉइन बना, या एक पेपर नोट का हम एग्जांपल लेते हैं, 2000 रुपीज़ की पेपर नोट। पेपर नोट है 2000 रुपीज़ का, इस पे कितना लिखा हुआ है 2000, इससे इसकी मनी वैल्यू कितनी है 2000। लेकिन इसके मटेरियल जिस कागज़ से बना है, ये जिस पीस ऑफ पेपर से बना है, इसको यदि आप उस पीस ऑफ पेपर को, मतलब ये 2000 रुपीज़ आप कट कर दे, इस पर से पेन लेकर उस 2000 रुपीज़ को कट कर देंगे, तो ये जिस मटेरियल को बना है उसको यदि आप बेचेंगे, उस पेपर को बेचेंगे, उस कागज़ के टुकड़े को बेचेंगे, तो क्या 2000 मिलेगा आपको? 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द ये एक ऐसी मनी है जिसकी वैल्यू एज मनी इज़ ग्रेटर देन वैल्यू एज कमोडिटी। कमोडिटी के रूप में इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको कम पैसा मिलेगा, और मनी के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो आप ज़्यादा परचेजिंग या पेमेंट या इसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है। इज़ दिस क्लियर? जैसे 10 रुपीज़ का जो कॉइन आज के समय जो चलता है, 10 रुपीज़ या 5 रुपीज़ वाला जो कॉइन होता है, तो इस कॉइन पे 5 रुपीज़ लिखा हुआ है, तो मतलब इसकी मनी वैल्यू कितनी होगी? 5 रुपीज़। और जिस मेटल से बना है उस मेटल की वैल्यू 5 रुपीज़ से क्या रहती है? कम रहती है। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। मतलब आज के रेट में जो भी हम पेपर नोट्स और कॉइन्स चल रहे हैं वो सब किसके एग्जाम्पल हैं? ऑल द पेपर नोट्स and all the coins used at present, these are the example of representative full bodied money, क्योंकि इनकी value as commodity is less than value as money। मनी के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन मनी के रूप में इस्तेमाल ना करें, उनके मटेरियल का इस्तेमाल करें, उसको बेचने की कोशिश करें, तो आपको उतनी उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। इज इस क्लियर? तो ये हो गया फुल बॉडीड मनी और दूसरा हो गया रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। ये बात आपको समझ में आई? इसमें कोई डाउट? तो दो केस मैंने बताया। यहाँ पे क्या होता है, कमोडिटी को COM लिखता हूँ, कमोडिटी वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, इज इक्वल टू मनी वैल्यू। फुल बॉडीड मनी में, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू में क्या हो रहा है, मनी वैल्यू, यहाँ पे मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। और तीसरी कंडीशन एक मैं बताता हूँ, यदि ऐसा होगा तो क्या होगा आप खुद सोचिएगा। इफ सपोज वैल्यू एज मनी या मनी वैल्यू इज लेस देन कमोडिटी वैल्यू, थर्ड कंडीशन में क्या होगा, मतलब एक कॉइन मुझे मिला, सपोज उस पर 5 रुपीज़ लिखा हुआ है, मतलब वैल्यू एज मनी कितना है 5 रुपीज़, और इसकी जिस मटेरियल से बना है ये, उसकी कॉस्ट है मान लीजिए 200 रुपीज़। तो एक कॉइन जब मेरे पास आएगा तो मैं आगे इसको सर्कुलेशन में रखूँगा ही नहीं, क्या करूँगा, इसको मेल्ट करके और इसके मटेरियल को बेच के कितना पैसा कमा लूँगा, 200। तो इससे क्या स्टार्ट हो जाएगी, स्मगलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए जब भी मनी बनाई जाती है तो या तो इस अप्रोच को फॉलो किया जाता है या इस अप्रोच को फॉलो किया जाता है, या तो कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों को बराबर रखा जाता है, या मनी वैल्यू को ज़्यादा और कमोडिटी वैल्यू को कम रखा जाता है। यदि थर्ड वाला ऑप्शन हम कर लेंगे तो जो हमारा मॉनेटरी सिस्टम है उसमें एक्सचेंज होगा ही नहीं, जिसके पास वो मनी आएगी वो मनी के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मनी वैल्यू कम है, कमोडिटी वैल्यू ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, उसको एज ए कमोडिटी बेच देंगे। वो मेल्ट करके जिस भी मटेरियल से बना है उसको मेल्ट करेंगे और उसको बेचना स्टार्ट कर देंगे, और इस तरह से जो मॉनेटरी सिस्टम होगा वो पूरी तरह से फेल कर जाएगा। तो ये हो गया फुल बॉडीड मनी। दूसरा हो गया रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, जिसको बोलते हैं क्रेडिट मनी भी। बैंक मनी का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स। बैंक में जो डिमांड डिपॉजिट लोग करते हैं वो होता है बैंक मनी। बैंक में जो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स पब्लिक करी रहती है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज़ नोन एज बैंक मनी। अब मैं आपको बता दूं, बैंक में 3 तरह के डिपॉजिट्स लोग करते हैं। एक करते हैं डिमांड डिपॉजिट, दूसरा करते हैं सेविंग डिपॉजिट, और तीसरा करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। इज इस क्लियर? आगे जब मैं बैंकिंग आपको पढ़ाऊंगा तीनों बताऊंगा, डिमांड डिपॉजिट,
सेविंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट ऐसा डिपॉजिट होता है जिसे जब चाहें तब आप विड्रॉ कर सकते हैं। सेविंग डिपॉजिट भी ऐसा होता है जिसे जब चाहें तब आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉल पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे कि जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं, आपके पिताजी का जो भी अकाउंट होगा वो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट रहता है। तो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट से जब आप एटीएम से विड्रॉल करने जाते हैं तो 4 या 5 ट्रांजेक्शन्स फ्री होते हैं। उसके बाद उस पर क्या आपको देना पड़ता है? कुछ फीस लगती है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं सेविंग डिपॉजिट भी डिमांड डिपॉजिट की तरह होता है। जब चाहें तब आप अपने डिपॉजिट को बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन्स या कुछ विड्रॉल फ्री होते हैं, उसके बाद आपको उसके लिए फ़ी देना पड़ता है। लेकिन डिमांड डिपॉजिट में आप चाहे जितने भी विड्रॉल करें इस पर कोई फ़ी नहीं लगती। और फिक्स डिपॉजिट जो होता है, जिसे टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं, इट इज़ डिपॉजिटेड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। उस पीरियड ऑफ टाइम से पहले इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। यदि फिक्स डिपॉजिट एफडी जिसको बोलते हैं, यदि 5 ईयर्स के लिए किया है तो उससे पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो आगे जो भी मैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी बताऊंगा आपको, उसमें 3 तरह के डिपॉजिट्स आपको मतलब अपने दिमाग में रखिएगा इसको। डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, 3 तरह के डिपॉजिट्स होते हैं। तो बैंक में पब्लिक का जितना भी डिमांड डिपॉजिट है सबको एक साथ क्या बोलते हैं? बैंक मनी। बैंक मनी मीन्स डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स ऑफ पब्लिक। एक होता है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी वेरी सिंपल। हाई पावर्ड मनी मीन्स इट रेफर्स टू करेंसी हेल्ड बाई पब्लिक। पब्लिक के पास जितनी करेंसी है, करेंसी का मतलब जितने क्वाइंस और प्लस नोट्स पब्लिक के हैंड में है वो, और कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक। जितना कैश पब्लिक के पास है और जितना कैश बैंक्स में है, दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो इसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। भाई जो भी कैश अवेलेबल है कंट्री में, जो भी क्वाइंस बने हैं और जो भी पेपर नोट्स प्रिंट हुई हैं, कुछ पेपर नोट्स पब्लिक के हाथ में है और रिमेनिंग कहाँ पे है? बैंक्स में है। क्योंकि पब्लिक को जो भी अमाउंट मिलता है, कैश मिलता है, उसका एक पार्ट अपने पास हो रखते हैं, उसको बोलते हैं करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, और रिमेनिंग को बैंक में क्या करते हैं? वो डिपॉजिट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक्स। इज दिस क्लियर? तो हाई पावर्ड मनी का मतलब होता है सी। सी मीन्स करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, प्लस आर मीन्स कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक्स। बैंक के पास जो कैश का जो स्टॉक है वो, और पब्लिक के पास जो कैश का स्टॉक है, उन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो इसे बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी मीन्स एनी मनी विच इज सर्व्स एज मनी ऑन द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। ऐसी कोई भी चीज़ जो मनी के रूप में काम कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा ऑर्डर दिया है। जैसे 2000 रुपीज़ की नोट पहले नहीं चलती थी, याद होगा डीमोनेटाइजेशन से पहले, जो 2016 में हुआ था डीमोनेटाइजेशन, उससे पहले 2000 के रुपीज़ की नोट सर्कुलेशन में नहीं थी, तो ये मनी नहीं था। लेकिन after demonetization, government of India ordered that 2000 rupees note will serve as money, that is why now it is serving as money। तो इसको बोलेंगे फिएट मनी या लीगल टेंडर मनी। याद होगा वो जो फेमस स्पीच हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने 8 बजे दिया था जब डीमोनेटाइजेशन 2016 नवंबर 8 को किया था, तो उन्होंने बोला था कि नाउ 500 रुपीज़ नोट्स एंड 1000 रुपीज़ नोट्स आर नॉट द लीगल टेंडर। तो लीगल टेंडर का मतलब यही हुआ। लीगल टेंडर का मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो मनी के रूप में काम करती है ऑन द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज़ लीगल टेंडर मनी। तो जितने भी क्वाइंस ऑफ पेपर नोट्स एंड दीज आर लीगल टेंडर मनी बिकॉज दीज आर सर्विंग एज मनी ऑन द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। अब इसको फिएट मनी भी बोलते हैं। ये 2 तरह के होते हैं। लीगल टेंडर मनी 2 तरह के होते हैं। एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी का मतलब एनी लीगल टेंडर मनी विच कैन बी यूज्ड अप टू अ सर्टेन लिमिट ओनली फॉर पेमेंट। मतलब ऐसी लीगल टेंडर मनी जिसमें पेमेंट की मैक्सिमम लिमिट गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि इससे ज़्यादा इसको इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। जैसे हमारे कंट्री में जितने भी क्वाइंस हैं, यदि क्वाइंस लिमिटेड लीगल टेंडर है, और पेपर नोट्स भी 2 ही तरह के हमारे कंट्री में करेंसी, 2 तरह के मतलब मनी है हमारे कंट्री में, क्वाइंस एंड पेपर नोट्स। क्वाइंस में भी मैक्सिमम लिमिट गवर्नमेंट ने पेमेंट की फ़िक्स करी हुई है, और पेपर नोट्स में भी। पेपर नोट्स में मैक्सिमम लिमिट पेमेंट की क्या है? एक दिन में 2 लाख रुपीज़ से ज़्यादा पेमेंट पेपर नोट्स के फॉर्म में नहीं कर सकते। ऐसे क्वाइंस के फॉर्म में यदि पेमेंट कर रहे हैं, क्वाइंस 1 रुपी से ज़्यादा के, क्या आपको पता है 1 रुपी से लोअर डिनोमिनेशन के क्वाइंस अब सर्कुलेशन में नहीं है, तो जितने भी क्वाइंस हैं उनका डिनोमिनेशन 1 रुपी या उससे ज़्यादा है। तो 1 रुपी से ज़्यादा के डिनोमिनेशन के जितने भी क्वाइंस हैं उनमें मैक्सिमम पेमेंट की लिमिट कितनी है? 1 तक। मतलब किसी पार्टी को आपको पेमेंट करना है क्वाइंस के फॉर्म में, तो मैक्सिमम पेमेंट कितने का कर सकते हैं? 1000 का। और पेपर नोट्स के फॉर्म में करना है तो मैक्सिमम पेमेंट आप कितने का कर सकते हैं? 2 लाख रुपीज़ का पेमेंट मैक्सिमम आप कर सकते हैं।
तो इस तरह से बोल सकते हैं कॉइन्स एंड पेपर नोट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ लीगल टेंडर मनी. लीगल टेंडर मनी मीन्स इट इज़ दैट, सॉरी, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी. लिमिटेड लीगल टेंडर मनी means that legal tender money which can be used up to certain limit only for payments. And unlimited legal tender money means it is that legal tender money which can be used up to any limit for payments. तो आप पूछेंगे इसके एग्जाम्पल, तो हमारे कंट्री में जितने भी दो ही तरह की लीगल टेंडर मनी है, क्वाइंस और पेपर नोट्स, और दोनों की मैक्सिमम लिमिट पेमेंट की फिक्स कर दी गई है. इसीलिए हमारे कंट्री में अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी कोई भी नहीं है. इज दिस क्लियर? तो पहले मैंने आपको बताया लीगल टेंडर मनी. लीगल टेंडर मनी दो तरह की होती है, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी. और दूसरी तो नॉन लीगल टेंडर मनी, जिसको फिड्यूसरी मनी भी बोलते हैं या ऑप्शनल मनी भी बोलते हैं. नॉन लीगल टेंडर मनी या फिड्यूसरी मनी या ऑप्शनल मनी, ये क्या होता है? नॉन लीगल टेंडर मनी इज दैट मनी विच डज नॉट एक्ट एज मनी ऑन द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट. ये एक ऐसी मनी होती है जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे मनी के रूप में काम नहीं करती. ये भी मनी के रूप में काम करती है लेकिन गवर्नमेंट के ऑर्डर पे नहीं. बट इट इज एक्सेप्टेड एज मनी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट ऑफ इशूअर. जिसने इस मनी को जिसने इशू करा है, जो पेमेंट के लिए यूज़ कर रहा है और जो एक्सेप्ट कर रहा है, जो पे कर रहा है, उसमें यदि उसका ट्रस्ट है तो उसको इस्तेमाल करेगा मनी के रूप में. अदरवाइज़ ये मनी के रूप में इस्तेमाल नहीं करी जाएगी. फॉर एग्जांपल चेक्स, ड्राफ्ट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज. मतलब आप ए पार्टी हैं और बी पार्टी को किसी पेमेंट करना है, और पेमेंट आप किसके फॉर्म में करना चाहते हैं? चेक. तो बी चेक आपसे कब एक्सेप्ट करेगा? जब बी का आप में क्या हो? फेथ हो, यदि आप पे ट्रस्ट हो. क्योंकि हो सकता है चेक बाउंस कर जाए, आपने 10,000 का पेमेंट करा और आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ है ही नहीं, तो इसको 10,000 रुपीज़ मिलेगा नहीं ना, तो चेक बाउंस कर जाएगा. तो इसीलिए ये जो नॉन लीगल टेंडर मनी ऐसी मनी होती है, इट इज़ एक्सेप्टेड एज मनी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट ऑफ इशूअर. जो इस मनी को इशू कर रहा है, जो इस मनी को पे कर रहा है, जो एक्सेप्ट कर रहा है, यदि जो पे कर रहा है उसमें उसका फेथ है तो एक्सेप्ट करेगा, फेथ नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा. जैसे मैं मान लीजिए शॉपकीपर हूँ और आप 10,000 का सामान मुझसे ख़रीदे, तो मैं कैश में लूँगा, ओके, या ऑनलाइन पेमेंट आपसे कराऊँगा, या आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट आप लूँगा. यदि आप चेक के फॉर्म में पेमेंट करेंगे, चेक में या ड्राफ्ट में, बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो चेक और ड्राफ्ट में मैं एक्सेप्ट तभी करूँगा जब मैं आपको जानता हूँ, आप पे मेरा ट्रस्ट है कि आप, मतलब आप मेरे साथ चीटिंग नहीं करेंगे. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चेक के फॉर्म में लोग पेमेंट करते हैं और जिसको पेमेंट करा वो जब चेक को इन कैश कराने के लिए बैंक में चेक को लगाता है तो पता चला जिसने चेक इशू करा है उसके बैंक में उतना अमाउंट ही नहीं, तो चेक बाउंस कर जाता है और पार्टी को पेमेंट नहीं हो पाता है. तो ये होता है नॉन लीगल टेंडर मनी. नियर मनी, एनीथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड ईजिली इनटू कैश इज़ नोन एज नियर मनी. ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सके उसको नियर मनी बोलते हैं. दैट इज़ नॉट money, that is not exactly money, but that is very much near to money. That is why that is known as near money. Why? Because it can easily be converted in form of cash. Like shares, bonds जो होते हैं, बेचेंगे तुरंत आपको कैश मिल जाएगा. बॉन्ड को बेचेंगे तुरंत कैश में. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, गोल्ड जो होता है, गोल्ड भी नियर मनी माना जाता है क्योंकि इसको आसानी से कैश में आप कन्वर्ट कर सकते हैं. तो कोई भी चीज़ जिसे आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट इज़ नोन एज नियर मनी. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब पब्लिक से अमाउंट बोरो करना होता है तो वो इशू करती है क्या? एन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. ये गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेट होता है. तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यदि आप 5,000 में परचेज़ करते हैं तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आ गया आपके पास और 5,000 रुपीज़ किसके पास चला जाएगा? गवर्नमेंट के पास. और मेच्योरिटी पीरियड मान लीजिए 5 ईयर्स इस पर लिखा गया, तो आफ्टर 5 ईयर्स जब आप इसको पोस्ट ऑफिस में सबमिट करेंगे तो आपको 5,000 रुपीज़ जितने में आपने ख़रीदा था वो तो मिलेगा ही, प्लस कुछ इंटरेस्ट 500 या 1,000, आपको 5,500, मतलब 5,000 से ज़्यादा अमाउंट आपको मिलेगा. तो लोग अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में. तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को भी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है आफ्टर द मेच्योरिटी पीरियड, तो इसको भी नियर मनी कहा जाता है. नेक्स्ट हमको पढ़ना है मनी सप्लाई. ये हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है. मनी सप्लाई. मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? मनी सप्लाई मीन्स टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. टोटल स्टॉक ऑफ मनी मतलब टोटल जो मनी
पब्लिक के पास रहती है, टोटल मनी का स्टॉक जो पब्लिक अपने पास रखी हुई है, दैट इज़ नोन एज मनी सप्लाई। सपोज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पब्लिक के पास टोटल 500 करोड़ रुपीज़ है मनी का स्टॉक, तो दिस विल बी नोन एज मनी सप्लाई। मतलब 500 करोड़ रुपीज़ हैव बीन सप्लाइड टू पब्लिक, पब्लिक को सप्लाई करा गया है। Is this clear? Stock of money supply means total stock of money that is being held by public at any point of time। पब्लिक के पास टोटल जितना स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल है उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। इतना समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पे एक नोट लिखा गया है, इट डज नॉट इंक्लूड द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय मनी क्रिएटिंग यूनिट्स। सबसे पहले आपको जानना है कि मनी क्रिएटिंग यूनिट्स कौन है जो मनी क्रिएट करते हैं, या कौन है हमारे कंट्री में जो पब्लिक को मनी सप्लाई करते हैं। तो पब्लिक को मनी सप्लाई कौन कौन करते हैं? आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये कौन कौन सी मनी को सप्लाई करता है? ऑल पेपर नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट को छोड़कर सारे पेपर नोट्स को सप्लाई कौन करता है? आरबीआई। इज इज क्लियर? हमारे कंट्री की जितनी भी पेपर नोट्स हैं, एक पेपर नोट को छोड़ के, कौन सी? 1 रुपी पेपर नोट को छोड़कर ऑल द पेपर नोट्स आर प्रिंटेड एंड इशूड बाय आरबीआई। इज इज क्लियर? दूसरा मनी का सप्लायर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल द क्वाइंस प्लस 1 रुपी पेपर नोट, दीज आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मनी को क्रिएट करने वाली पहली अथॉरिटी कौन हो गई? आरबीआई। दूसरी अथॉरिटी गवर्नमेंट, और तीसरी अथॉरिटी कौन हो गए? कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक मतलब जितने भी बैंक हैं जिनसे पब्लिक डील करती है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब कॉमर्शियल बैंक के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये मनी सप्लाई कैसे करते हैं? जो आरबीआई है और गवर्नमेंट, अभी मैंने बताया जो भी हमारे कंट्री में मनी की प्रिंटिंग होती है या जो भी मनी का क्रिएशन होता है, कौन करते हैं? ऑल द पेपर नोट्स आरबीआई एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट प्लस ऑल क्वाइंस, दीज आर इशूड बाय गवर्नमेंट। तो ये दोनों इशू करते हैं, और इशू इन दोनों की डीलिंग पब्लिक से नहीं होती है। आरबीआई और गवर्नमेंट जो पेपर नोट्स बनाते हैं और जो क्वाइंस बनाते हैं वो पब्लिक को नहीं देते, ये किसको देते हैं? कॉमर्शियल बैंक्स को। और कॉमर्शियल बैंक किसको देते हैं? पब्लिक को। किस फॉर्म में? पब्लिक क्या करती है? इनसे बोरो करती है, बोरोइंग्स के फॉर्म में ये लेंड करते हैं पब्लिक को। तो इस तरह से मनी हमारे कंट्री में जो सप्लाई होती है वो 3 इंस्टीट्यूशन सप्लाई करते हैं, आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे क्रिएट द मनी एंड सप्लाई टू कॉमर्शियल बैंक्स, एंड कॉमर्शियल बैंक सप्लाई टू पब्लिक। तो इस तरह से हमारे कंट्री में मनी क्रिएटिंग अथॉरिटी कौन कौन सी हो गई, या मनी क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशंस, या मनी सप्लायर्स, मनी के सप्लायर कौन कौन हो गए? आरबीआई प्लस गवर्नमेंट और प्लस कॉमर्शियल बैंक्स। इज इज क्लियर? तो नोट में ये लिखा गया है, इट डज नॉट इंक्लूड, व्हाट डज नॉट इंक्लूड? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई डज नॉट इंक्लूड दैट अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ हेल्ड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक। मतलब मनी के जो सप्लायर्स हैं, मनी को जो लोग सप्लाई करते हैं, उनके पास जो मनी है वो अभी सप्लाई नहीं हुई है, वो लोग अपने पास अभी रखे हुए हैं। जब पब्लिक को दे देंगे, जब पब्लिक को सप्लाई कर देंगे तो उसे मनी सप्लाई बोला जाएगा। जैसे कोई प्रोडक्शन यूनिट है पेन की, इज इज क्लियर? और पेन की प्रोडक्शन यूनिट ए है, इसमें 10 पेन्स बना के रखा गया है, तो इसे पेन की सप्लाई माना जाएगा? नहीं। पेन की सप्लाई कब बोला जाएगा? जब 10 पेन्स को कहाँ लॉन्च कर दिया जाएगा? मार्केट में। यदि ये 10 पेन्स मार्केट में आ गई तो इसे बोलेंगे सप्लाई ऑफ पेन। ऐसे ही मनी को क्रिएट करने वाली जो अथॉरिटीज़ हैं या मनी क्रिएटिंग यूनिट्स कौन सी हैं? आरबीआई प्लस कॉमर्शियल बैंक्स प्लस गवर्नमेंट। ये जब मनी को क्रिएट करके अपने पास जो स्टॉक ऑफ मनी रखे रहते हैं, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई? ओनली दैट अमाउंट ऑफ मनी विच हैज़ बीन क्रिएटेड बाय आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक्स एंड गवर्नमेंट एंड हैज़ बीन सप्लाइड टू पब्लिक। मतलब जो अमाउंट ऑफ मनी पब्लिक के हाथ में आ गया है वो मनी सप्लाई है। जो अमाउंट ऑफ मनी अभी पब्लिक के पास नहीं आया है, आरबीआई के पास, कॉमर्शियल बैंक्स के पास और गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है,
दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। अब हमारे कंट्री में मनी सप्लाई कितने का हुआ है, या मनी सप्लाई टोटल स्टॉक ऑफ मनी जो पब्लिक के पास है वो कितना है, उसका मेजरमेंट कैसे किया जाए। उसको मेजरमेंट करने के लिए हमारे कंट्री में कुछ फॉर्मूले बनाए गए हैं। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई के मेजरमेंट के कुछ फार्मूले हमारे कंट्री में बनाए गए हैं। वो फार्मूले कौन कौन से हैं? M1 फार्मूला, M2, M3, M4, L1, L2, L3, ये सारे फार्मूले हैं। अब L1 हमको नहीं पढ़ना है, L2 नहीं पढ़ना है, L3 नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है कौन कौन से मनी सप्लाई के मेजरमेंट के कौन कौन से फार्मूले, M1, M2, M3 एंड M4। ये चार फार्मूले वी हैव टू स्टडी। इज दिस क्लियर? उसी को हमको स्टडी करना है। अब यहाँ पे एक करेक्शन करना पड़ेगा। ये मैसेज जो लिख गया है ये मिसप्रिंट है, ये है मेसर्स। मतलब मनी सप्लाई का मेजरमेंट कैसे किया जाए, कैसे मेजरमेंट करा जाए कि मनी सप्लाई कितने की किसी कंट्री में हुई है। तो पहला फार्मूला होता है M1। M1 मेजरमेंट का जो पहला फार्मूला होता है दैट इज़ M1 इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD। सी का मतलब क्या होता है? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। जितना करेंसी मतलब जितना कैश पब्लिक के पास है क्वाइंस और पेपर नोट्स के फॉर्म में, दैट। और प्लस डीडी का मतलब डिमांड डिपॉजिट्स विद कॉमर्शियल बैंक्स। पब्लिक ने कॉमर्शियल बैंक्स में जितना डिमांड डिपॉजिट करा है, मैंने आपको बताया था 3 तरह के डिपॉजिट्स होती हैं, डिमांड डिपॉजिट प्लस सेविंग डिपॉजिट प्लस फिक्स डिपॉजिट। तो यहाँ पे M1 फार्मूले में हम क्या ले रहे हैं? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद कॉमर्शियल बैंक्स, और OD का मतलब अदर डिपॉजिट्स विद RBI। मतलब M1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। M1 फार्मूले के 3 कंपोनेंट्स हैं, C, DD और OD। C मतलब करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, मतलब पब्लिक के पास कितना करेंसी है, मतलब कितना क्वाइंस और पेपर नोट्स पब्लिक के पास पड़ा हुआ है। DD मतलब डिमांड डिपॉजिट्स विद कॉमर्शियल बैंक्स, मतलब कॉमर्शियल बैंक्स जो भी जितने हमारे कंट्री में हैं उनमें डिमांड डिपॉजिट कितने का पब्लिक ने किया हुआ है। और तीसरा अदर डिपॉजिट्स विद RBI, RBI के पास कितने डिपॉजिट्स हुए हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, RBI की डीलिंग पब्लिक से नहीं होती है। RBI में ना तो पब्लिक कोई पैसा जमा कर सकती है, ना RBI से कोई पैसा पब्लिक विड्रॉ कर सकती है। पब्लिक की डीलिंग केवल किससे होती है? कॉमर्शियल बैंक से होती है। तब आप कहेंगे कि फिर RBI में कहाँ से डिपॉजिट्स आता है? RBI में डिपॉजिट्स 3 जगह से आता है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनसे आता है, लाइक नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, और SIDBI हम पढ़ चुके हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इसका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं हमारे कंट्री के हैं, वो RBI में जो डिमांड डिपॉजिट करते हैं, मतलब पब्लिक नहीं कर सकती, लेकिन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब सरकारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो डिमांड डिपॉजिट RBI में करते हैं वो किसका पार्ट है? OD का पार्ट है, अदर डिपॉजिट्स विद RBI। सेकेंड पार्ट ऑफ अदर OD, डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स। RBI में हमारे कंट्री की पब्लिक तो डिपॉजिट नहीं कर सकती है, लेकिन फॉरेन गवर्नमेंट्स और फॉरेन सेंट्रल बैंक दूसरे के, जैसे हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक है RBI, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो हम RBI में जो डिमांड डिपॉजिट क्रिएट करते हैं वो OD का पार्ट है। और तीसरा पार्ट डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक एंड IMF, यहाँ टाइपिंग छूट गई है तो इसको आप, डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं तो OD के 3 पार्ट्स होते हैं। C आप समझ चुके हैं, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, पब्लिक के पास जो करेंसी का स्टॉक है, क्वाइन और पेपर नोट्स। दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स विद कॉमर्शियल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स में पब्लिक ने जितना डिमांड डिपॉजिट करा है वो जोड़ लेते हैं। और तीसरा RBI में जो डिपॉजिट्स हुआ, अदर डिपॉजिट्स विद RBI। तो RBI में कौन से डिपॉजिट्स हम लेने हैं? डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। किसने किया है? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने जितना डिमांड डिपॉजिट करा है, या फॉरेन सेंट्रल बैंक्स या फॉरेन गवर्नमेंट्स ने जितना डिमांड डिपॉजिट किया है, या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने डिमांड डिपॉजिट जो RBI में करा है, टोटल स्टॉक उसको जोड़ लेंगे, OD को जोड़ लेंगे, DD को जोड़ लेंगे और C को जोड़ लेंगे, जो अमाउंट आएगा वो क्या हो जाएगा? M1। तो इस तरह से M1 फार्मूला यूज़ करके हम पता कर सकते हैं
कि कंट्री में मनी की सप्लाई कितनी है। ठीक है, तो इस फार्मूले के बाद एक और फार्मूला यूज़ करा जाता है, दैट इज़ नोन एज M2। अब आप कहेंगे कि कौन सा सही है, M1 सही है, M2 सही है, M3 सही है, M4 सही है। चारों फार्मूले सही है, चारों यूज़ कर सकते हैं, चाहे M1 यूज़ करें, चाहे M2 यूज़ करें, चाहे M3 यूज़ करें, चाहे M4 यूज़ करें, सारे फार्मूले अपनी जगह पे सही हैं। मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर तो कोई फार्मूला नहीं देता है। टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसका पता लगाना इम्पॉसिबल है, लेकिन ये एक रफ आइडिया दे देते हैं कि टोटल सप्लाई ऑफ मनी एक कंट्री में एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कितना है। M2 फार्मूला क्या है, M1 का फार्मूला हमको पता ही है, M1 इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD। ये लगा के हम M1 निकालेंगे और M1 में ऐड कर देंगे सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। आपको पता है पोस्ट ऑफिस जो होते हैं वो सेविंग, उनमें सेविंग अकाउंट हम ओपन, पोस्ट ऑफिस बैंक के रूप में काम करते हैं और उसमें हम सेविंग डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे कॉमर्शियल बैंक में हम डिमांड डिपॉजिट करते हैं, सेविंग डिपॉजिट करते हैं, वैसे ही पोस्ट ऑफिस में सेविंग डिपॉजिट हम कर सकते हैं। तो M2 फार्मूले में हम क्या इंक्लूड करते हैं, M1, और उसमें ऐड कर देते हैं सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, मतलब पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग डिपॉजिट करें उसको ऐड कर देते हैं। अब M3 फार्मूला एक है, M3 फार्मूले में क्या होता है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बच्चे गलती ये करते हैं कि M3 इक्वल्स टू, वो यूज़ कर लेते हैं M2, क्योंकि M2 इक्वल्स टू फार्मूले में आ रहा है M1 प्लस, तो M3 इसी मतलब ट्रेंड को फॉलो करते हुए M3 इक्वल्स टू M2 प्लस कर लेते हैं, बट M3 इक्वल्स टू M1 प्लस है। फिर से M2 इक्वल्स टू M1 प्लस, M3 इक्वल्स टू M1 प्लस अगेन, और यहाँ पे क्या आ जाता है, M2 में आया था सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, M3 इक्वल्स टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स में टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, कॉमर्शियल बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट हुआ है, नेट का मतलब जितना फिक्स डिपॉजिट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है और माइनस उस फिक्स डिपॉजिट में से जितना लोग विड्रॉ करने आए हैं, जितना विड्रॉ करने आया उसको नहीं। जैसे फिक्स डिपॉजिट सपोज 10,000 करोड़ रुपीज़ का है और एट अ गिवन डे 100 करोड़ रुपीज़ लोग विड्रॉ करने आ गए, तो अभी कितना, सॉरी 1,000 रुपीज़ का फिक्स डिपॉजिट, 1,000 करोड़ रुपीज़ का फिक्स डिपॉजिट एक बैंक में है, और एट अ पर्टिकुलर गिवन डे पीपल, पब्लिक इज़ कमिंग टू विड्रॉ 100 करोड़ रुपीज़। इज दिस क्लियर? तो कितना टाइम डिपॉजिट बचा वहाँ पे, 900 करोड़ रुपीज़, इसी को बोलेंगे नेट टाइम डिपॉजिट। द टोटल टाइम डिपॉजिट माइनस द टाइम डिपॉजिट विच पब्लिक वांट्स टू विथड्रॉ at a particular given day, on a particular given day, that is known as net time deposit with commercial banks। तो commercial banks में जो फिक्स डिपॉजिट हुआ है, नेट फिक्स डिपॉजिट, उसको M1 में ऐड कर देते हैं तो M3 पता चल जाता है। और M4 का फॉर्मूला क्या है, M4 इक्वल्स टू M3। अब यहाँ पे M4 इक्वल्स टू M2 नहीं लेंगे, M2 देखिए किसी भी फॉर्मूले में नहीं आया है। M4 इक्वल्स टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, वही पोस्ट सेविंग डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, फिर से वही आ गया, लेकिन यहाँ पे केवल हमने सेविंग डिपॉजिट लिया था, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में केवल सेविंग डिपॉजिट। इस बार ले रहे हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के रूप में काम करता है। इसमें टोटल डिपॉजिट, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट हो, चाहे सेविंग डिपॉजिट हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट, इसमें पोस्ट ऑफिस में जो लोगों ने डिपॉजिट करा है, ऑल काइंड ऑफ डिपॉजिट्स हम ले रहे हैं, एक को छोड़ के, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। मैंने आपको बताया था नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इज़ नॉट द डिपॉजिट ऑफ पब्लिक, ये पब्लिक का डिपॉजिट नहीं है। मनी सप्लाई में हम केवल डिपॉजिट्स ले हैं, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पब्लिक का डिपॉजिट नहीं है, बल्कि ये एक तरह से क्या है, पब्लिक का इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में, इसीलिए इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। इस तरह से ये बहुत ही पूछे जाते हैं चारों चीज़ें, M1, M2, M3 एंड M4। M1 का फार्मूला क्या हो जाएगा, C प्लस DD प्लस OD। C करेंसी हेल्ड बाई पब्लिक, DD डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद कॉमर्शियल बैंक्स, OD मीन्स अदर डिपॉजिट्स विद RBI। अब अदर डिपॉजिट्स विद RBI के 3 पार्ट्स हैं, डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड फॉरेन गवर्नमेंट, डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद नेक्स्ट M2 equals to M1 plus saving deposit with post office saving bank, M3 equals to M1 plus net time deposits with commercial banks, and M4 equals to M3 plus total deposits with post office saving banks excluding national savings certificate. So these are M1, M2, M3, M4। तो ये जो टॉपिक आज मैंने कवर किया इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, M1, M2, M3, M4।
इज इज क्लियर? अब अभी तक जितना मैंने कवर करा है उसको एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ. बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, this is not the part of our syllabus. Meaning of money, this is the part of our syllabus, but the functions of money not the part of our syllabus. Various forms of money: full bodied money, representative full bodied money, bank money, high powered money, legal tender money, non legal tender money, near money. These are the part of our syllabus, and most important part of our syllabus from this topic is money supply. C plus DD plus OD. मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? टोटल स्टॉक ऑफ मनी दैट इज़ हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. यहाँ पे याद रखना है मनी के सप्लायर कौन कौन होते हैं जो मनी को सप्लाई करते हैं, या मनी क्रिएटिंग यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं? आरबीआई हमारे कंट्री में प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कौन कौन सी मनी आरबीआई क्रिएट करती है? ऑल द पेपर नोट्स आर क्रिएटेड बाय आरबीआई एक्सेप्ट 1 रुपी नोट. 1 रुपी नोट ये नहीं करता, इसके अलावा सारे पेपर नोट्स. गवर्नमेंट 1 रुपी नोट प्लस ऑल द क्वाइंस. और इसको जब क्रिएट कर लेते हैं तो कहाँ इसको सप्लाई करते हैं? कॉमर्शियल बैंक्स के पास. और कॉमर्शियल बैंक से कहाँ सप्लाई होती है? पब्लिक के पास. इस तरह से हम बोल सकते हैं कि आरबीआई, गवर्नमेंट एंड कॉमर्शियल बैंक, दीज आर द 3 सप्लायर्स ऑफ मनी. तो सप्लायर्स ऑफ मनी के पास जो मनी पड़ा रहता है वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता है. ठीक वैसे ही जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो कार की यूनिट्स पड़ी रहती हैं, एक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने 20 कार्स बनाई और 20 कार्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के गोडाउन में पड़ा हुआ है, तो कार सप्लाइड में उसको जोड़ा नहीं जाएगा. कब उसको कार सप्लाइड में जोड़ा जाएगा? जब वो कार मार्केट में लॉन्च हो जाएंगी. ठीक वैसे ही मनी बनाकर यदि सेंट्रल बैंक, आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक अपने पास मनी को क्रिएट करके प्रिंट करके अपने पास रखे रहते हैं, पब्लिक को नहीं देते हैं, तो इसे मनी सप्लाई का पार्ट नहीं माना जाएगा. मनी सप्लाई इज ओनली दैट अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. अब मनी सप्लाई का मेजरमेंट कैसे करा जाए कि इकॉनमी में कितनी मनी सप्लाई करी गई है? उसके लिए 4 फार्मूले हैं. पहला फार्मूला M1, नेक्स्ट फार्मूला इज़ M2, M3 एंड M4 लास्ट फार्मूला. और भी हैं L1, L2, L3, लेकिन वो हमको पढ़ने नहीं है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक. थैंक यू.